Hello students, myself Rakesh Misra. This is important series of revision. As you all know, our overall lesson is clear. That is, the chapter 1 to 4 is clear. And since long time, I have selected the important revision for you. MCQs type question, fill in the blanks, true, false is almost over from different kinds of lesson. If I miss the MCQs, true, false from any lesson, you can recommend me in video lecture. I will provide you the MCQs, thoroughly revision of MCQs, true, false for that respected chapter. In that series of revision, I have here selected the long and short type question for you, and this is actually the part 2 video. This is the part 2 video for long and short type question of natural resource. This is the long and short type question from natural resource. In this series, you will learn the question number 8 onward, because in previous video lecture you have learned the question number 1 to 7. That was actually the part 1 video. In that video, every concept was from 1 marks question. In this video, the 1 marks question from very short type question is still pending, and you will learn the question number 8 onward, that is also from 1 marks. But I will try to explain thoroughly whatever. If you have find any kinds of problems regarding that questions in upcoming 2 marks, 3 marks or 5 marks, that by means of the very short or long type question, you will undoubtedly you will very without any problems you can solve that questions. So without delay timing, let back over the question number 8 and revise thoroughly. Now the question number 8 onward, all about the matter of question number up to question number 7 is over in previous video lecture, and the last question of previous video lecture was the question number 17. What are the importance of water in human life? And you all know what about the importance of what are the importance of water in human life. It is clear and there is no need to explain furthermore. Now back to the question number 8. What is the composition of soil? It is very important question. It is very important question regarding your upcoming examination. Actually, the soil basically consists the two for the biotic and abiotic components. Abiotic components. What are the biotic components? The living body present in the soil is known as the biotic components. As you all know, the earthworm, some fungi like mycorrhiza, and some insects like ants live inside the soil. So they are actually from the biotic components, and the biotic components totally less part, and they are actually about 5% only. It is about 5% only, and their waste from the humus. Humus are the organic decomposed matter. They are actually non-living component, but they are formed from the biotic excretion and the decomposition of biotic material. So they are actually the latter called as the organic materials. तो इसको डायरेक्ट हम बायोटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं ह्यूमस को, बट इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है, और बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो 5% बायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये 5% ह्यूमस भी आता है. ह्यूमस क्या है? ब्राउन कलर जो सॉइल होता है, जो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमस. ए बायोटिक कंपोनेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. फॉर एग्जांपल 45% मिनरल्स आते हैं. इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में. 45% मिनरल्स आते हैं. 30% जो है इसमें तो वाटर आता है. सॉइल में 30% तक वाटर हो सकता है, एंड 20 to 30% तक एयर कंपोजिशन हो सकता है. 20 to 30% तक एयर कंपोजिशन हो सकता है. सो कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाना चाहिए. हालांकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में मैंने इसको रिवाइज करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको लॉन्ग आंसर टाइप मान के चलिए. अगर एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप आता है तो भी ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल ये बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए. ठीक है, तो ये सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें. सॉइल का जो दो पार्ट है, बायोटिक जिससे हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल आता है ह्यूमस, और ये बायोटिक जिसमें आपका 45% मिनरल्स है, 30% सॉइल है.
ठीक है, और 20 to 30% एयर है। मिनरल्स में क्या है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कभी कभी आयरन्स भी आते हैं, तो ये सब मिनरल्स है। और इसके अलावा 30% वाटर और 20 to 30% एयर आता है। आई होप ये आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिफाइन सॉइल। सॉइल को आपको डिफाइन करना है, इजी है, सॉइल को डिफाइन करना आसान है। द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉल्ड सॉइल। अब अर्थ क्रस्ट क्या होता है, आप जब अर्थ को ओवरऑल अर्थ का आप टीएस काटेंगे और सामने से देखेंगे तो आपको क्या मालूम देगा, इसमें तमाम लेयर दिखेंगे, ऐसे तमाम लेयर दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है, CRUST, इसको क्या बोलेंगे, सबसे ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं मेंटल, ये इंपॉर्टेंट होता है, मेंटल। और सबसे बॉटम के लेयर को क्या बोलते हैं, कोर। तो ये कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये 3 पार्ट होते हैं। और क्रस्ट के अपर लेयर को क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको इसी बेस पे डिफाइन भी करते हैं, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉल्ड सॉइल। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिफाइन करने में। कंपोजिशन मैंने ऊपर बता दिया क्वेश्चन नंबर 8 में, डिफिनीशन ये 9 में बता दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्ट किया गया प्रीवियस ईयर बोर्ड से, साइड बुक से, और भी बहुत सारी जगहों से मैंने इसको कलेक्ट किया है, इसको आपको करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर्स को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बायोस्फीयर्स को कैसे आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, द लिविंग कंपोनेंट्स, द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर लिविंग कंपोनेंट्स, द पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो फिर से कट गया, लिखना पड़ेगा, वहाँ तक तो लिख ही सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के आगे लिखना क्या है, वेयर द लिविंग कंपोनेंट्स आर हेल्ड कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग कंपोनेंट्स आर हेल्ड कॉल्ड एज बायोस्फीयर्स। ये लिविंग कंपोनेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंट है, माइक्रो मीन्स द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इसके अलावा फंगी, प्रोटोजोअन, ये सब आते हैं, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंसेक्ट, रैट, बफेलो, ह्यूमन बींग एक्सेट्रा। तो ये बायोस्फीयर्स मीन्स यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पे बायोस मतलब लिविंग बींग रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किया आपके लिए। नेम एनी 2 एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कह रहा है कि 2 ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स का नाम लिखिए जो कोल और पेट्रोलियम के बर्न होने पे, जलने पे ये बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल यानी कि जब कोयला जलता है ना तो क्या क्या उससे निकलते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसके अलावा N2O भी निकलता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या निकलता है, SO2 भी निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा इसी पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अब आते हैं
पेट्रोलियम अगर बर्न करता है तो क्या निकलता है, इसको भी क्लियर कर देना है। पेट्रोलियम, ये दोनों फॉसिल्स है, ठीक है, कोल हुआ और पेट्रोलियम, ये दोनों फॉसिल्स फ्यूल हैं। ये जलने पे क्या निकलता है, ये बेसिकली जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ये निकलता है। पेट्रोलियम जब बनता है तो ढेर सारे हाइड्रोकार्बन ऐसे लीनियरली अरेंज होते हैं, ये जब नहीं जल पाते हैं तो हवा में रिलीज हो जाते हैं, जिससे क्या मिलता है, जिससे वो एनवायरमेंटल का पॉल्यूशन होता है। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, और साथ साथ NO2, N2O यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है जो जलने पे निकलते हैं। और पेट्रोलियम के जलने पे सल्फर डाइऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये पेट्रोलियम के बर्न होने पे और कोल के बर्न होने पे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल इटसेल्फ रिलीज्ड आउट आफ्टर द बर्निंग ऑफ। तो 2 पूछा है हमने यहाँ पे, ढेर सारा लिख दिया, इसमें से जो 2 आपको छांटना हो छांट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, नेम द कार्बन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ओजोन होल इन एटमॉस्फेयर। कई बार रिलीज हो चुका है, कई बार आपको बताया जा चुका है ऊपर। कार्बन कंपाउंड क्या है, CFCl3, CFCl3, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, आप नोट कर लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFCl3, ये क्या है, कंपाउंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इन एटमॉस्फेयर। और ओजोन होल का डिप्लेशन ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने डीप बताया है, और लाइव क्लास में भी इसको अच्छे से बता दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा भी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे ओजोन होल बनता है। देखो ओजोन होल बनता कैसे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जिससे भी क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलेगा, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, जिससे भी क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलेगा ना, उससे ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। नेम द 3 प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड। कह रहा है कि कोई 3 प्रोसेस बताइए जिससे ऑक्सीजन यूज होता है। तो पहला प्रोसेस सबको पता है, किससे क्या पता चलता है उससे, सबसे पहले कंबस्शन में, ठीक है, कंबस्शन में, चीज़ों के जलने में ऑक्सीजन का काफ़ी यूज होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन, oxygen is utilized in the process of respiration. How? The glucose C6H12O6 required 6 molecule of oxygen to release the carbon dioxide and water as well as energy. So these are the important use of oxygen. Not only combustion, या 3 पूछा है तो एक और लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, formation of oxides, for example N2O nitric oxide, NO2 nitrous oxide, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. These are the different oxide that are formed by the oxidation through the oxygen. So the 3 use or the 3 utilization or 3 use of the oxygen is the combustion, respiration and formation of oxide in the atmosphere, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। नेम 2 नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल ऑन द अर्थ। कह रहा है कि 2 नेचुरल रिसोर्स जो अर्थ पे अवेलेबल है उसको आपको लिखना है। तो आई होप सब लोग पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या है, फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है,
फॉसिल्स फ्यूल। इसके अलावा वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, एयर भी नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, मिनरल्स भी नेचुरल रिसोर्स है, जितने भी मिनरल्स हैं वो सब नेचुरल रिसोर्स है। दो पूछा यहाँ पे, मैंने आपको चार बता दिया, इसमें से कोई दो लिख देंगे, ठीक है, इसमें से कोई आप दो लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिव वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर्स। कोई एक एग्जांपल लिखिए। ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा हर्बीवर्स, इसके अलावा कार्निवर्स भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, फंगी लिख सकते हैं, प्रोटोजोअन लिख सकते हैं, इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं। सो दो पूछा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, ठीक है। वन पूछा, सॉरी वन पूछा और हमने ढेर सारा लिख दिया है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। कह रहा है कि इसमें से छांटना है कि कौन बायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं। सॉइल, प्लांट्स, फिश, एयर, इंसेक्ट, इसमें से कौन बायोटिक नहीं है उसको छांटना है। देखो सॉइल जो है ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स है, सॉइल नॉन लिविंग थे है ना, तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स है। इसके अलावा प्लांट्स, फिशेस, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन है? प्लांट्स, फिशेस, ठीक है, इंसेक्ट्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स है। इसके अलावा लास्ट में ये जो दिया हुआ एयर, ये एयर क्या है? ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो हमने छाट दिया है। सॉइल ए बायोटिक है, एयर क्या है? ए बायोटिक है, ठीक है, और बाकी सब प्लांट्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप समराइज कर लेंगे, पूछ लेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम द टू ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कह रहा है एसिड रेन के लिए कोई दो ऑक्साइड्स का नाम लिखिए, बताइए, जो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है और एसिड रेन काज करता है। मैंने क्या बताया था कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जब बारिश की बूंदें आती है ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स रहते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड। These are the important concepts, these are the important oxide present in the atmosphere, and it is in presence of water, of rain water. When the water of rain water react with sulfur dioxide, then they form sulfuric acid. Sulfuric acid. When the water react with nitrous oxide, they form the nitric acid, that is HNO3, that is the nitric acid, and that is the sulfuric acid. And the rain, after getting the sulfuric acid or the nitric acid, are called as acid rain. Acid rain. I hope your concept regarding the acid rains and the components of soil, components of the fossil fuel is clear. Now the next question is, mention the two form of precipitation in nature when the temperature of air is very low। कह रहा है कि नेचर का दो फॉर्म बताइए जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है जब टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ, आपको बताया गया था फॉग, स्मॉग, ठीक है। इसके अलावा आपको हेल बताया गया होगा, जो स्नोफॉल होता है। ये सब क्या है? प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, और प्रेसिपिटेटेड फॉर्म किसके हैं? वाटर के, ठीक है। लेकिन ये वाटर का प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है। लेकिन फॉग, स्मॉग, ये एयर में अवेलेबल जो है, ये एयर में अवेलेबल जो है ड्यू है, ड्यू, और ये एयर में अवेलेबल जो है जितने भी हमारे सॉलिड कार्बन के कंपोनेंट्स है, ये सब जो है दोनों एक साथ मिलते हैं, फॉग और स्मोक, तो स्मॉग बनता है, ठीक है। जब स्मोक जो होता है, कार्बन पार्टिकल्स या कोई भी सॉलिड्स जो पॉल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट है, वो अगर ड्यू के साथ यानी कि फॉग के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? ये स्मॉग बनता है।
तो स्मॉग हुआ प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, फॉग जो है ड्यू का प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, और हेल जो है हैवी ड्यू का प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है। आई होप ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 19 onward. So be ready for 19 onward. I will discuss about the question number 19 onward in next video lecture. Thank you.